Good morning, everybody. My dear, I'm Philippe Solomon. Today, I'm going to discuss about the planning, kinds of planning, what is the introductions of planning, from where it was introduced, and finally, world is also mad to raise these types of episode, these types of strategy, and what was the need for that they accepted these types of strategy. First, we have to know यार planning what do you mean by planning? Planning है क्या? Planning is a strategy, planning is a policy for future, for upcoming days, for any things by which we are going to achieve, or for which we are determined to follow and to achieve our targets. Like that, economic planning refers to the path of actions in which, in the terms of policy measures to be followed in future. Is it okay? Mean to say, हम फ्यूचर के लिए क्या स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं, प्रेजेंट अभी क्या चल रही है, पास्ट हमने क्या देखा, और फॉर अपकमिंग डेज विच टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी मस्ट बी मेड एंड फ्रेम्ड व्हेन वी आर डिटरमाइंड टू फॉलो, कॉशियस टू यूज एंड कंज्यूम, little consume and get more and more output. This is the part of a strategy, this is the part of planning. What to do, at which time we have to do, when to start, when to end. These types of interpretations always bestows us a fruitful result. तो इस तरह से हम प्लानिंग की बात करते हैं, बट हिस्ट्री वॉज नॉट इट. History was that planning was completely, we can say, coined by USSR on the regional level. तो सबसे पहले प्लानिंग शब्द का, प्लानिंग का जो इस्तेमाल किया गया था वह यूएसएसआर ने रीजनल लेवल पर स्टार्ट किया था. That's why all of the geographical boundary and the people of the USSR and Russia, they did not find out what's the strategy of our government and what policy implemented by your government, which types of result can be conceived. Then finally, America in 1917, Tennessee Valley Authority launched, established. That's why it is called on the basis of national level. That's why we can say practically USA established the planning and the concept of planning, but principally, if I'm talking, US are named as. Is it okay? And first we have to know about the some objectives of the planning, why it was introduced. If I'm talking about the Indian economy, if I'm talking about the Indian planning, why Indian planning was manufactured, and in spite of it, what was the history behind it, that which types of objectives, which types of motto behind this, and finally our government launched 5-year plans, planning in India, because planning is a subject of concurrent list. Okay, so first we have to know first objective of the plan, a high rate of growth. A high rate of growth with a view to improvement in the standard of living. तो जो हमारा हाई रेट ऑफ ग्रोथ होता है, इससे क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग होता है इसको हम इम्प्रूव करते हैं. ठीक है. सेकंड जो होती है वो हमारा मॉडर्नाइजेशन होता है. मॉडर्नाइजेशन मीन टू से मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड सोशल आउटलुक. ओके, तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एज पर द डिमांड्स, एज पर द टाइम डिमांड्स, एज पर द पीपल डिमांड, एज पर द वर्ल्ड डिमांड्स, दुनिया क्या खोजती है, लोग को क्या इच्छा है, समय का क्या मांग है, उसके अनुरूप चेंज आवर सेल्फ, हमें अपने आप को बदल देना है. ठीक है. जहां पर हम कम से कम कंज्यूम करेंगे अपने रिसोर्सेज को और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट वहां से हम गेन करेंगे. दिस इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग, दिस इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉडर्नाइजेशन. ठीक है. थर्ड वन इज कॉल्ड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस. जैसा कि मोदी जी अभी प्रधानमंत्री 2 दिन पहले भी बोले हैं, आत्मनिर्भर भारत. तो हम आत्मनिर्भर, जो हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, हाउ इट कैन बी हेल्ड, ये कब होगा, तो देन इट कैन बी हेल्ड. एंड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस आल्सो रिफर टू दैट अवॉइडिंग इंपोर्ट विच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया.
जो हमारे देश में प्रोड्यूस्ड हुआ है उसको हम इंपोर्ट करने से बचें, तभी हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ठीक है, तो यदि आत्मनिर्भरता की हम फिलोसफी को लेते हैं तो आत्मनिर्भरता तभी होगी दैट व्हेन वी आर डिटरमाइंड टू यूटिलाइज ईच एंड एवरी indigenous things which has been completely produced in our country under our geographical boundary. Is it okay? Fourth one is called equity. Equity mean to say it implies equitable distribution of wealth with social justice. किनको कितना जरूरत है, किस अनुपात में जरूरत है। ठीक है, एक सोशल जस्टिस के साथ एक बराबर धन की जो बंटवारा होता है वो हमारा इक्विटी का रूप होता है। ठीक है, एंड फाइनल इज कॉल्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और ओवरऑल ये चारों यदि हम पॉइंट कर लेते हैं तो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो जाएगी, इन विच वी मीन्स कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को हम कंप्लीटली जब हम कंट्रोल कर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, तो इसमें हम कह सकते हैं हमारी जो इकोनॉमिक होती है वो स्टेबिलिटी का रूप ले लेता है। इज इट ओके? तो इन दिस एपिसोड दिस वाज द कंप्लीटली इंट्रोडक्शन from where it was used, from where it was launched. अगला हमारा जो एपिसोड इसमें है वह है काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और बाइलिंगुअली मैं बताऊंगा जिससे कि आपका एक नोट्स तैयार हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट हम सबसे पहले हम यदि टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग देखेंगे तो ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बटेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे रोल ऑफ या रोल ऑन गवर्नमेंट, सरकार की भूमिका के आधार पर हमारे प्लानिंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ द गवर्नमेंट प्लानिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड, प्लानिंग इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक हमारा इम्परेटिव प्लानिंग होता है, एक हमारा इंड्यूसमेंट प्लानिंग होता है। ठीक है, इम्परेटिव प्लानिंग इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्टिव, टोटलिटेरियन और ऑथोरिटेटिव प्लानिंग। तो हमारा जो डायरेक्टिव प्लानिंग इम्परेटिव जो प्लानिंग होता है, इम्परेटिव प्लानिंग को हम डायरेक्टिव प्लानिंग भी कहते हैं, टोटलिटेरियन प्लानिंग भी कहते हैं और ऑथोरिटेटिव प्लानिंग भी कहते हैं। समटाइम्स प्लानिंग बाय डायरेक्शन और कमांड, इट इज ऑल्सो नोन एज। तो कभी कभी जो हमारा इम्परेटिव प्लानिंग होता है इसको हम प्लानिंग बाय डायरेक्शन भी कहते हैं, प्लानिंग बाय कमांड के रूप में भी जानते हैं। व्हाई? बिकॉज इन दिस प्लानिंग, in these kinds of planning, what happened? One central authority is established which decides all aspects of planning. तो इसमें सबसे पहले एक सेंट्रल अथॉरिटी को स्थापित किया जाता है जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्लानिंग के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसको डिसाइड करता है, कब करना है, क्या करना है, कितना प्रोडक्ट करनी है, किसका कितना इस्तेमाल कंज्यूम करनी है, कितना उसको शेयर करानी है, कब इसका प्लानिंग का क्या पीरियड होगा। दीज आर कंप्लीटली डिसाइडेड बाय सेंट्रल अथॉरिटी। इज इट ओके? दैट्स व्हाई वी कैन से इन द जनरल सेंस प्रैक्टिस दिस टाइप्स ऑफ, इट मीन टू से इम्परेटिव प्लानिंग इज कंप्लीटली एंड जनरली एक्सरसाइज्ड एंड प्रैक्टिस्ड इन वी कैन से सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इसीलिए सबसे ज्यादा जो हमारा सोशलिस्टिक इकोनॉमी मीन टू से वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूएसएसआर इकोनॉमी या रसियाज इकोनॉमी। ठीक है, तो जो रसिया की इकोनॉमी है वो हमारा क्या है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी है। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में सबसे पहला हमारा इम्परेटिव इकोनॉमी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सेकेंड जो होता है वो हमारा इंड्यूसमेंट इकोनॉमी होता है। इंड्यूसमेंट मीन इंडिकेट मीन्स टू डिमोन्स्ट्रेट, यानी जब हम किसी भी चीजों को हम डिमोन्स्ट्रेट करते हैं। डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी भी चीजों को जब हम बिंदुआत्मक दृष्टि से देखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटिव। ठीक है, या इंड्यूसमेंट। दैट्स व्हाई इंड्यूसमेंट प्लानिंग इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिकेटिव और मार्केट इंसेंटिव्स प्लानिंग। इसीलिए जो हमारा पास इंड्यूसमेंट प्लानिंग होता है इसको हम लोग इंडिकेटिव भी बोलते हैं या मार्केट इंसेंटिव प्लानिंग के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों भैया? बिकॉज इन दिस काइंड्स ऑफ प्लानिंग a state regulates the private sectors to achieve the set targets। क्योंकि इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट राज्य जो होता है वह रेगुलेट करती है किसको, प्राइवेट सेक्टर को। किस लिए? जिससे कि जो भी उनके द्वारा टारगेट सेट किया गया है उसको वो अचीव कर सके। इज इट ओके? दैट्स व्हाई वी कैन से इट कैन बी एक्सरसाइज एज अ परसुएशन आफ्टर देन कंपल्सन।
तो ये एक परसुएशन के रूप में इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया जाता है, उसके बाद ही इसको माना जाता है कि यह कंपल्सन का रूप होगा। ठीक है, अब हम यदि बात करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, यानी लोगों की पार्टिसिपेशन के आधार पर हमारी इकोनॉमी दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, एक हमारा सेंट्रलाइज इकोनॉमी होता है या सेंट्रलाइज प्लानिंग होता है, एक हमारा डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सेंट्रलाइज प्लानिंग किसको कहेंगे। तो सेंट्रलाइज प्लानिंग मीन टू से ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस टेकन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा हर प्रकार की जो आर्थिक स्थिति से लेकर के जितने भी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी आप कह सकते हैं फैसला होते हैं, वर्डिक्ट्स होते हैं, वे सारे उनके द्वारा लिया जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन से गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स इकोनॉमिक प्लान्स। तो इसमें क्या होती है कि सरकार जो होती है इकोनॉमिक प्लान्स को फॉर्मुलेट करती है, डिटरमाइंस ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य होना चाहिए, वे सारे चीजों को भी वो डिटरमाइंस करती कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एंड सेट्स टारगेट एंड प्रायोरिटी, और टारगेट भी करती है कि कब तक हमें इसे हासिल कर लेनी है तथा कौन कौन से क्षेत्रों को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, ये हमारा सेंट्रलाइज में आता है। यदि हम डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइज इज कनेक्टेड विद द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज। तो सबसे पहले डिसेंट्रलाइज जो प्लानिंग का जो पार्ट्स होते हैं, ये हमारा कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमीज होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से ये जुड़ा होता है। एंड इट इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड थ्रू मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट की स्थिति को देख करके इसको इम्प्लीमेंट की जाती है। ठीक है, मार्केट में कितना डिमांड है, कितना स्टोर है, मार्केट में क्या किस चीज की कमियां हैं, दोज मैकेनिज्म कैन बी मेजर्ड। ओके, एंड आफ्टर द स्टेप्स can be taken by the government, okay, and finally it can be imposed. Okay, that's why we can say in the decentralized planning it also empowers कौन, decentralized जो हमारे प्लानिंग जो होता है वो हमारा empowers करती है किसको, पीपल को, एज प्लानिंग ऑपरेट्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, कि हमें नीचे से ऊपर यानी गरीब से अमीर की जो दृष्टि होती है, ठीक है, उस स्थिति पे हमें काम करना, उस कंसेप्ट पे काम करनी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारा प्लानिंग होता है वह टाइम के आधार पर क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के आधार पर हमारा इकोनॉमी तीन भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, एक जो होता है हमारा शॉर्ट टर्म प्लान होता है, एक हमारा मीडियम टर्म प्लान होता है, एक हमारा लॉन्ग टर्म प्लान होता है। तो शॉर्ट टर्म प्लान जो होती है, ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोलिंग प्लान। इसको हम लोग नॉर्मली कंट्रोलिंग प्लान के रूप में जानते हैं। एग्जाम में आएगी कंट्रोलिंग प्लान किसको कहते हैं, तो आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म प्लान को हम कंट्रोलिंग प्लान कहेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इट इनकम्पन्सेस द पीरियड ऑफ 1 ईयर, क्योंकि इसको लगभग कह सकते हैं एक साल के लिए कार्य करती है, एक साल के लिए मसौदा तैयार करता है, प्लान तैयार करता है। दैट्स वाई या देयरफॉर यू कैन से दिस प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड एनुअल प्लान, इसीलिए इसको हम लोग एनुअल प्लान के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, इसका जो मुख्य जो उद्देश्य होता है किसका, शॉर्ट टर्म प्लान का। ठीक है, तो इसकी जो मुख्य उद्देश्य होती है वह होती है रेज रेवेन्यू को बढ़ाएंगे, अटेन शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक टारगेट, जो शॉर्ट टर्म के लिए हम अल्प समय के लिए जो टारगेट किए उसको हासिल करेंगे, ब्रिंग प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिरता को प्राप्त करेंगे यानी लाएंगे। ठीक है, एंड रिमूव BOP डेफिसिट, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट जो होती है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, समाप्त करेंगे। यह हमारा जो होता है शॉर्ट टर्म पीरियड या शॉर्ट टर्म प्लान का यह एक रूप होता है। ठीक है, दूसरा हमारा जो होता है वह होता है हमारा मीडियम टर्म प्लान। मीडियम टर्म प्लान मीन टू से इट लास्ट फॉर 3 to 7 ईयर्स। तो जो हमारे पास मीडियम टर्म प्लान होता है वह 3 से 7 साल तक का इसका पीरियड होती है। ठीक है, बट नॉर्मली इट इज मेड फॉर 5 ईयर्स, लेकिन नॉर्मली इसको 5 साल के लिए बनाया जाता है। इज इट ओके? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मीडियम टर्म प्लान, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, इसकी ऑब्जेक्टिव जो होती है टू रेज पर कैपिटा इनकम, हम प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना इसका मुख्य मकसद होता है। रेज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लेवल को बढ़ाना। क्रिएट सेल्फ सफिशिएंसी, अपने आप पे आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। रिड्यूस डिपेंडेंस ओवर फॉरेन एड, जो हमारे पास विदेशी सहायता पे जो हम निर्भर होते हैं उसको कम करना। ठीक है, एंड रेज रेवेन्यू थ्रू डोमेस्टिक सोर्सेज, जो भी हमारे पास घरेलू स्रोत हैं
उसके तहत हम अपने रेवेन्यू को बढ़ाएंगे, है ना, जिसके द्वारा हम कर सकते हैं एंड टू रिमूव रीजनल एंड इंट्रा रीजनल डिस्पेरिटी, और साथ ही साथ जो हमारे एक क्षेत्रीय तथा अंतः क्षेत्रीय जो हमारे पास डिस्पेरिटी होती है, डिस्पेरिटी का मतलब होता है जो क्या कर सकते हैं आप, तुलनात्मक जो होती है, ठीक है, गैप जो होता है उसको समाप्त करने का जो काम होता है वह मीडियम टर्म प्लान के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। थर्ड इसका जो प्लान होता है वो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान कहलाता है। अब बात हुआ सर लॉन्ग टर्म प्लान किसको कहते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म प्लान लास्ट फॉर 10 to 30 ईयर्स। तो लॉन्ग टर्म जो प्लान होता है वह 10 साल से लेकर के 30 साल तक इसका पीरियड होता है, ठीक है। एंड दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान। आपके एग्जाम में एक आध हजार बार पूछा हुआ कि पर्सपेक्टिव प्लान से आप क्या समझते हैं। तो पर्सपेक्टिव प्लान का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्लान, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम जो होता है लॉन्ग टर्म प्लान को ही हम पर्सपेक्टिव प्लान कहते हैं, जो 10 से 30 साल तक के लिए होता है, ठीक है। और इसकी जो बेसिक आप फिलॉसफी कर सकते हैं, इसकी जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वह होता है टू ब्रिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। हम अपनी अर्थव्यवस्था में एक संरचनात्मक बदलाव जो लाते हैं, स्ट्रक्चरल जो हम चेंजेस लाते हैं अपने इकोनॉमी, यही हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग का पार्ट होता है, पर्सपेक्टिव प्लानिंग का पार्ट होता है। मतलब ये लॉन्ग टर्म या कह सकता है स्ट्रक्चरल जो चेंजेस होते हैं, रिफॉर्म्स होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो उनको भिन्न भिन्न चाहे जो भी हमारे पास फॉर्म्स ऑफ जो प्लानिंग है उसमें हर चीजों में एक नया अनूठा चीजों को संलग्न कर देना, जिसमें हम कम समय में अपने टारगेट को हासिल कर सकते हैं, कम कंज्यूम करके हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। यही हमारा पार्ट जो होता है पर्सपेक्टिव तथा लॉन्ग टर्म प्लान का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एपिसोड, तो इसमें होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। तो जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उसको जब हम एलोकेट करते हैं तो उस आधार पे हमारी इकोनॉमी प्लानिंग दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। वह होता है फिजिकल प्लानिंग और एक होता है फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। तो यह जो होता है रिसोर्सेज को एलोकेशन के आधार ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। तो इस आधार पे हमारी इकोनॉमी हमारी प्लानिंग दो भागों में बढ़ता है। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्लानिंग, ठीक है। तो फिजिकल प्लानिंग क्या होता है? फिजिकल प्लानिंग इज कंसर्न विद फिजिकल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद द प्रोडक्टिव यील्ड। तो जो भी हम प्रोडक्टिव जो हमारे पास प्रोडक्ट हो रहे हैं उस प्रोडक्ट को जितने भी हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जो ओवरऑल जो रिसोर्सेज के आधार पर जो हम कंसर्न करते हैं यही हमारा जो होता है फिजिकल प्लानिंग का फॉर्म होता है, ठीक है। और इसकी जो लक्ष्य होती है, ठीक है, इसका लक्ष्य होता है टू ब्रिंग फिजिकल बैलेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड आउटपुट। तो इसमें होता है कि हम सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट और आउटपुट के बीच में जो हमारे पास एक बैलेंस यानी संतुलन बनाने का जो होता है लक्ष्य, यह हमारा फिजिकल प्लानिंग के अंतर्गत किया जाती है। दैट्स वाई वी कैन से इट इज कंसर्न विथ रियल रिसोर्स ऑफ इकोनॉमी। इसीलिए इसको कहा जाता है कि जो हमारे इकोनॉमी के जो रियल रिसोर्सेज हैं उसके साथ इसको जुड़ना होना चाहिए या ये संबंधित होता है, ठीक है। एक होता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग, इसका दूसरा पार्ट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है इट्स एम, इफ आई एम टॉकिंग, इसका लक्ष्य क्या होता है? इट्स एम्स एट एस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई के बीच में समानता, ठीक है, लाने का जो कार्य होता है, जो लक्ष्य होता है, वह हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत आती है, ठीक है। एंड सप्लाई टू अवॉइड इन्फ्लेशन, आप इतने सप्लाई करो कि इन्फ्लेशन ना हो सके, ठीक है। एंड ब्रिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिससे हम अपने अर्थव्यवस्था को स्टेबल बना सके, ये हमारा फाइनेंशियल ही होती है। दैट्स व्हाई वी कैन से इट डिपिक्ट्स द साइज ऑफ इकोनॉमी इन मॉनेटरी टर्म्स ऑल्सो। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो इकोनॉमी होती है, ठीक है, इस इकोनॉमी के एक मॉनेटरी यदि हम मुद्रा फॉर्म में यदि देखते हैं तो वहां पर एक अर्थव्यवस्था की अलग ही प्रकार के या स्ट्रक्चर एक कर सकते हैं फॉर्म, ये जो हमारा तैयार कर देती है, ठीक है। अब हमारा होता है कि इकोनॉमी जो हमारा प्लानिंग होता है वह प्लानिंग हमारे फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी, ठीक है। इट मीन टू से ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ, तो यह कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी के आधार पर हमारे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो होती है वह 4 भागों में बढ़ जाता है। पॉइंट मस्ट बी नोटेड, कितने भागों में बटेंगे? 4 भागों में बटेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो होता है वो हमारा रोलिंग प्लान होता है, ठीक है। रोलिंग प्लान, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट भारत में किसने दिया? तो दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय गुनार मिर्डल। तो सबसे पहले भारत में रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट गुनार मिर्डल ने दिया था। इज इट ओके?
कब रोलिंग प्लान कब आया था? 1978 में, जब हमारे यहाँ जनता पार्टी की सरकार थी। इज इट ओके? और जनता पार्टी की सरकार के समय आपको पता होना चाहिए 1978 के समय में हमारे भारत में जो पॉलिटिकल जो स्टेज था ना, वो बहुत ज्यादा डिसअरेंज हो चुकी थी, उथल पुथल हो रहा था। ठीक है, तो उसी समय सबसे पहले हमारे यहाँ रोलिंग प्लान शुरू की गई थी जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, और यह कॉन्सेप्ट जो थी गुनार मेडल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, एंड इट ऑल्सो रिफर्स टू द रोलिंग ऑफ अ प्लान एट इंटरवल्स ऑफ यूजुअल 1 ईयर। तो यह 1 साल के इंटरवल पर इसको जो होती है शुरू की जाती है। दैट्स वाई वी कैन से सो दैट इट कंटिन्यूज टू बी अ प्लान ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर। जब तक हमारे एक सर्टेन ऑफ नंबर्स ऑफ ईयर्स, जब तक हमारा एक एनुअल प्लान जब तक स्टेब्लिश नहीं हो जाता, जब तक फॉर्म नहीं हो जाती, तब तक इसको बीच में चलाया जाता है। ठीक है, दैट्स वाई वी कैन से इट इज यूजुअली मीडियम टर्म प्लान। इसीलिए इसको नॉर्मली शब्दों में, जनरल सेंस में हम लोग मीडियम टर्म प्लान के रूप में भी जानते हैं। इज इट ओके? दूसरा इसका जो होता है वो होता है हमारा फिक्स्ड प्लान। ठीक है, अब फिक्स्ड प्लान किसको कहते हैं? तो फिक्स्ड प्लान मीन टू से द कंटेंट्स ऑफ प्लान आर फिक्स्ड इन रिलेशन टू अ फिक्स टाइम पीरियड। तो एक हम जो टाइम फिक्स कर देते हैं कि हमें इस फिक्स समय में ही ये प्राप्त हो जानी चाहिए, तो ये हमारा जो होता है वो फिक्स प्लान के अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसे हम इसमें कंटेंट के रूप में आप कह सकते हैं, जैसे आपने लक्ष्य क्या किया। ठीक है, जैसे हमारे देश में विजन 2020 का लक्ष्य था, जैसे सरकार की लक्ष्य है 2025 तक 5 ट्रिलियन का देश की इकोनॉमी बना देना, तो ये हमारा टारगेटेड हुआ। फिर आपने प्रायोरिटी क्या दिया, तो सरकार ने करी कि नहीं भैया, हम इंद्रधनुष जो हमारा रेनबो रेवोल्यूशन के तहत हम एजुकेशन हर क्षेत्रों को हम तब तक अच्छे कर लेंगे। फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो स्ट्रेटजी की बात होगी। एंड चेंज ओनली अंडर सीवियर अनफॉर्चुन इवेंट्स। तो जो हमारे पास अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट्स हो जाते हैं, हैपनिंग्स हो जाते हैं, उसके अंतर्गत हम अपनी इकोनॉमी में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, ये सारे चीजों को इसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा होता है स्ट्रक्चरल प्लानिंग। स्ट्रक्चरल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? तो स्ट्रक्चरल प्लानिंग एम्स एट ब्रिंगिंग चेंजेस इन सोशियो इकोनॉमिक। तो हम सामाजिक आर्थिक जो इकोनॉमी में जो बदलाव करते हैं, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चरल प्लानिंग के अंतर्गत आता है। दैट्स वाई इट इज सेटअप ऑफ अ कंट्री, और इससे किसी भी कह सकते हैं राष्ट्र का निर्माण भी होता है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू यूएसएसआर 1929 1929 ईस्वी में। जिस तरह से 1929 ईस्वी में ग्रेट जो डिप्रेशन हुआ था, उस समय सबसे पहले यूएसएसआर ने इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, एंड विच एबॉलिश्ड लैंडलॉर्ड सिस्टम, जहां पर जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई। इंट्रोडक्शन ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग वहां पर लाया गया। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चरल प्लानिंग के अंतर्गत लाया गया था। यदि हम फंक्शनल प्लानिंग की बात करते हैं, जो हमारा लास्ट एपिसोड जा रहा है, तो फंक्शनल प्लानिंग जो होती है, नो चेंजेस ब्रॉट इन द एग्जिस्टिंग सोशियो इकोनॉमिक सेटअप। तो जो हमारा सामाजिक आर्थिक जो हमारी एक कह सकते हैं जो अर्थव्यवस्था है, उसमें यह किसी भी प्रकार का बदलाव को नहीं लाता। एंड प्लानिंग मेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस। जो भी इंस्टीट्यूशंस उनके अनुरूप जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्ट्रेटजी तैयार किए जाते हैं, रूप बनाए जाते हैं, यही हमारा फंक्शनल प्लानिंग का रूप होता है। ठीक है, एंड इट इज मेनली फॉलोड इन फ्रांस, जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम्स। और अभी वर्तमान की यदि स्थिति की बात करते हैं, तो वर्तमान की स्थिति में फंक्शनल प्लानिंग का इस्तेमाल फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, यूनाइटेड किंगडम हुए, ऐसे राष्ट्रों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन को इंडिकेटिव प्लानिंग। ठीक है, तो इंडिकेटिव जो प्लानिंग है, ये एट्रीब्यूट किसने किया? तो एट्रीब्यूट इंडिकेटिव प्लानिंग को सबसे पहले एट्रीब्यूट करने वाला फ्रांस था। ठीक है, अब इंडिया इसको कब एक्सेप्ट किया था? तो इंडिया ने इसको 1991 में एक्सेप्ट किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रोलिंग प्लानिंग इंट्रोड्यूस भारत में कब हुआ था? तो अभी हमने जस्ट बताया था, जनता पार्टी की सरकार जब 1978 ईस्वी में आई थी, तो उस समय इसको भारत में इसको स्थापित किया गया था, भारत ने इसको स्वीकार किया था। ठीक है, तो 2-3 यहाँ पर जो क्वेश्चन थे, सारे हम क्वेश्चन भी आपको डील कर दिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस एपिसोड, और आप एपिसोड से आप अपना नोट्स तैयार कर लीजिए, और जितने भी एग्जाम में आते हैं सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।